So in short, we are going to discuss about first about the topic work, denoted by symbol W. In science, work is said to be done. In science, work is said to be done by a force. If the point of application of force, this is suppose the point of application of force, it gets displaced in the direction of force. It gets displaced in the direction of force. Then only work is said to be done. Okay. So, and mathematically, work is the product of magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. Magnitude of force and magnitude of displacement in the direction of force. So W equals to F into S. तो अगर आपको पूछा जाए what is the SI unit of work, if I ask you, do you have any answer? Okay, Advika has given fastest answer. Megha Paul. Nabaruna has given the answer. And Abhishek Tanuj Priyal. SI unit of work. SI unit, when you do the calculation, it is Joule. Joule. लेकिन आप यहाँ देख सकते हो W equals to F into S. So there is force का SI unit Newton, displacement or distance का meter. So Newton meter is also a unit of work. Then Newton को हम लोग लिख सकते हैं as kg meter per second square or into meter. So it will become kg meter square per second square. This is also unit of work. So SI यूनिट ऑफ वर्क पूछने से आपको आंसर देना चाहिए जूल और न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, kg meter square per second square. Now if I ask you what is the CGS unit of work, if I ask you what is the CGS unit of work, anyone who can answer? Abhishek, Priyal, Advika, Shreya, Bhumi, Palak, you all are giving correct answer. Sanchit also. CGS unit of work is erg, or we can write dyne centimeter, or you can also write gram centimeter square per second square. इससे कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने. Okay, so how will you calculate work done? Work done calculate कैसे करोगे आप? Product of force and displacement. Suppose a force of 20 Newton is applied on a body, and because of that the body gets displaced by 2 meter in the direction of force. So if I ask you what is the work done, what is the work done? If I ask you, Advika, Megha, Shreya, you are giving correct answers. Or Anchita, Nabaruna, Katha, Parishmita, Priyal, you all are giving correct answer. तो यहाँ पे आपको work calculate करोगे. Work is the product of force and displacement. Force is 20 Newton and displacement 2 meters. So 20 Newton into 2 meter will be 40 Newton meter. इसको 40 जूल लिख सकते हैं हम लोग. Okay, 40 Newton meter is 40 joule. Now, if I ask you, work done is scalar quantity or vector quantity, क्या बोलोगे आप? Work is scalar or vector? Some students are saying scalar, some are saying vector. Those who are saying scalar, it is correct. Okay, work is scalar quantity, not vector. Work is scalar. Work को scalar क्यों बोला जाता है? Why work is called scalar? यहाँ तो direction of displacement force vector है. And higher class में you will get this answer. Product of two vector quantities is a scalar quantity. So work is scalar. So work is what kind of physical quantity? Work is scalar quantity. Is it correct?
So if I ask you what is work, work is defined as the product of magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. Magnitude of displacement in the direction of force. तो अभी तक हम लोगों ने वर्क का एक मेन फॉर्मूला डिस्कस किया है, W इक्वल्स टू F इंटू एस. सो ये पर्टिकुलर स्क्रीन का, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, एंड इफ यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग तो बहुत अच्छा है. आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन. और यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको दिमाग में सेट भी रखना है. मूविंग टू अनदर स्क्रीन. और अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. दैट वन इज एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. और ये रिलेशन आपको जानना चाहिए 1 मार्क के लिए डायरेक्ट. 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. नाउ हाउ टू एस्टैब्लिश इट. इसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको वर्क का जो मेन फॉर्मूला है उसको यूज करना होगा. W इक्वल्स टू F इंटू एस. सो वी कैन राइट हियर work as a unit joule, so we can write 1 joule is equals to 1 newton into 1 meter. So 1 newton is 10 to the power 5 dyne and 1 meter is 10 to the power 2 yani 100 centimeter. So it will be 10 to the power 5 into 10 to the power 2 dyne centimeter, and this will be 10 to the power 7 erg because dyne centimeter is erg. Okay, so you can easily establish this relation between joule and erg. अगर आपको पूछा जाए 1 joule में कितना erg, 1 joule is 10 to the power 7 erg. Have you understood, all of you? Okay, just raise your hand to confirm. Okay, Akshat is asking, can you re-explain this? He needs re-explanation. तो एक बार अक्षत वापस देखो. हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया W इक्वल्स टू F इंटू एस. वर्क का SI यूनिट जूल, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल. फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, तो यहाँ 1 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर, तो 1 मीटर. 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और फिर 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस करेंगे पावर को तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा. और थोड़ा देर मैंने पहले ही समझाया था आप लोगों को, डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग. डाइन सेंटीमीटर इज अर्ग. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो वी आर डिस्कसिंग वर्क, और अभी हम लोग वर्क के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं. वर्क का SI यूनिट जूल. ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं. देयर इज अ वॉल and you are pushing this wall. You are applying force, but the wall is not displaced. If I ask you what is the work done? Okay, Advika, Gatha, Shreya, Tanuj, Parishmita, Navaruna, Priyal, Megha, you all are giving correct answer. Work done will be 0 in this case. 0 work done. This can be used as an example of 0 work done. Okay, so Archita and Sanskriti also given correct answer. Now moving to another question, another point, sorry. तो अभी हम लोग का टॉपिक है वर्क डन, और अभी तक हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया W इक्वल्स टू F इंटू एस. W इक्वल्स टू F इंटू एस. अब मैं बात करूंगा अबाउट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. Work done against gravity. Okay, so this is supposed to be the surface of the earth. An object of mass m, an object of mass m is raised to certain height. Let the height be h. Let g be the acceleration due to gravity. Okay, here the body is raised against gravitational pull. So work done against gravity. वैसे work done का फॉर्मूला क्या है? By definition F into S.
सो यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई करना होगा, इस बॉडी को ऊपर ले जाना आप लोगों को, एंड फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट टू विच द बॉडी इज रेज्ड। आप में से कौन हमको बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? Nabaruna, you're wrong. I am asking calculation of weight, weight calculation. Wrong है Abhishek, Megha, you're wrong, and Samir correct है, Advika correct है, Abhishek Ray, you are now correct. Okay. So weight का formula है weight calculation, W equals to mg. याद रखना, वेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे हम इंस्टीड ऑफ वेट विल राइट व्हाट, mg, और हाइट हो गया h, तो ये हो गया mgh। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी? तो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mgh। एक फॉर्मूला हम लोग को मिला W इक्वल्स टू F इंटू एस। सो W इक्वल्स टू F इंटू एस हम लोग यूज करेंगे वर्क डन इन हॉराइजन। W इक्वल्स टू mgh हम लोग यूज करेंगे व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया कब कौन सा यूज करना है। हॉराइजन में वर्क डन हो रहा है तो F इंटू एस, अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है तो इट इज mgh। इज इट क्लियर? Just raise your hand to confirm if it is clear. Okay. So just take the screenshot if required. I'm moving to another screen. So अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉर्मूला नंबर 1 W इक्वल्स टू F इंटू एस, फिर फॉर्मूला नंबर 2 W इक्वल्स टू mgh। ओके, अब मैं एक और सिचुएशन डिस्कस करता हूं आपके साथ कि ऐसा एक सिचुएशन जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट दूसरा डायरेक्शन में हो रहा है। लेट द एंगल बिटवीन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो बाय डेफिनेशन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ये बताता है वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये जो फोर्स वाला क्वांटिटी है इसको हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व यानी डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा F साइन थीटा और एक होगा F कॉस थीटा। मैं अगर आपको पूछता हूं कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में है, F कॉस थीटा या फिर F साइन थीटा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में कौन सा है? प्रियर बाजोरिया इज करेक्ट और समीर गाथा कॉस थीटा वाला, अद्विका ऑल्सो। सो इन दिस केस वर्क डन विल बी F cos थीटा इंटू एस। इसको हम लोग लिख सकते हैं Fs cos थीटा। cos एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ओके, cos एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। cos थीटा आप लिख सकते हो B बाई एच, ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। सो ये अगर परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। सो बेस टू हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा दैट विल बी कॉस थीटा। और आपको कॉस का अलग अलग एंगल का कुछ कॉमन वैल्यूज जानना है। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री 1/2, cos 30 degree is √3/2. Cos 30 degree is √3/2. Cos 45 degree is 1/√2. Cos 60 degree is 1/2. Cos 90 degree is 0.
cos 180 डिग्री इज -1। कम से कम इतना आपको याद रखना है। ओके, ये सब का कैलकुलेशन है, यू विल गेट इन ट्रिगोनोमेट्री पार्ट मैथमेटिक्स में। अभी आपको ये वैल्यू सब याद रखना है। ओके, सो cos 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 एंड 90 0 और 180 डिग्री इज -1। ये कुछ कॉमन जो रिक्वायर्ड है आपको। सो अगर आपको बोला जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा? कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? इफ आई आस्क यू, श्रेया डे हैज गिवन द आंसर, नबरुना, समीर, प्रियल, मेघा, पलक एंड अद्विका, मंगलम, अभिषेक, तरुण। सो यहाँ पे वर्क डन F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, F इंटू एस इंटू 0, सो इट विल बी 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? सिचुएशन ये होना पड़ेगा, आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल गिवन होगा और आपको पूछेगा वर्क डन कैलकुलेट करना है। इन दैट केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, so have you understood this one? Have you understood? Just raise your hand to confirm. Just raise your hand to confirm. Okay. So अभी तक हम लोगों को वर्क का कितना फॉर्मूला मिला? वर्क का फर्स्ट फॉर्मूला था जो हम लोग आज डिस्कस किए, F इंटू एस। वर्क का सेकेंड फॉर्मूला था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, mgh। और थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एफ एस कॉस थीटा। These are the three common formula for calculating work done. लेकिन यहां मैं आपको एक और फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं फॉर वर्क डन। ओके, मंगलम, ठीक है, स्कूल में अगर मना कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं करना है, देन इट इज गुड। देन इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, और अच्छा है आपके लिए। अब मैं वर्क डन का एक और फॉर्मूला डिराइव करता हूं आप लोगों के लिए। सपोज देयर इज अ बॉडी, उस मास इज m, a force has been applied, उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और फोर्स अप्लाई करने के बाद इट मूव्ड विथ एक्सेलरेशन, reached another position, let the velocity becomes v, time taken t, displacement s। तो ये सिचुएशन आपको मोशन चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी डिस्कस किया, ऐसा बहुत सिचुएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन कि एक बॉडी जिसका मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, फोर्स हैज बीन अप्लाइड, टाइम टेकन t, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, t 1 नहीं है, वो t है और साथ में कॉमा यहाँ पे होगा, थोड़ा पेन का थिकनेस ज्यादा है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आई एम गोइंग टू डिराइव अनदर फॉर्मूला। वी नो व्हाट W is equals to F into S, ये हम लोग को पता है। W is equals to F into S, so we also know that F equals to MA, we also know that F equals to MA, और S के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है पहले से, V square minus U square equals to 2AS। So from this S equals to V square minus U square by 2A, can we write this? Can we write this? इस सिचुएशन में अगर बॉडी एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन में होगा तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो कैन आई राइट s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। सो यहाँ पे s को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख रहे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, a गॉट कैंसल्ड। अब बचा क्या आपके पास, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो mv² माइनस mu²/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ mv² माइनस हाफ mu²। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m कॉमन ले लिया आप लोगों ने, v² माइनस u²। हाफ और m कॉमन ले लिया, तो फाइनली हम लोग को क्या फॉर्मूला मिल रहा है, w इक्वल्स टू हाफ m v² माइनस u²। यानी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू नो द मास ऑफ द बॉडी, इफ यू नो इनिशियल वेलोसिटी, इफ यू नो फाइनल वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जहां मास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन होगा, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, यू विल हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। हैव यू अंडरस्टूड द डेराइवेशन? ये फॉर्मूला डेराइवेशन समझ में आया आप लोगों को? अदर्स, हैव यू अंडरस्टूड? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। थोड़ा ठीक से देख लो इसको। ओके, so most of you have understood this particular derivation, and I'm moving to another point. Okay, वर्क के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया अभी तक, और यहाँ हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे अबाउट पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। न्यूमेरिकल्स विल डिस्कस, वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल अलग से एक क्लास में या दो क्लास भी लगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क एंड एनर्जी का मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा कम डिस्कस किया अभी तक, और अब हम लोग फाइनल एग्जाम तक ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही रखेंगे। लर्निंग पार्ट तो यू कैन डू, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को 9 में न्यूमेरिकल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो वर्क पार्ट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। अब मैं बात करता हूं पॉजिटिव वर्क डन कब बोलेंगे। पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? Under what condition work done is said to be positive? If the direction of force and direction of displacement are the same, work done is positive. अब तो आप बोलोगे ऐसा कैसा सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा? तो आपने कोई भी ऐसा गेम जिसमें दो अलग अलग टीम एक रोप को दो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करने का कोशिश करता है, इस गेम को क्या बोलते हैं? यू नो दैट? एनीवन? Two teams are pulling a rope. Okay, good. Tug of war. क्या है गेम का नाम? टग ऑफ वॉर। सो इसमें क्या होता है, देयर आर टू टीम्स, टीम ए एंड टीम बी, दे आर पुलिंग अ रोप, और बीच में एक लाइन मार्क कर दिया जाता है कि जो टीम किसी और टीम को इस लाइन को क्रॉस करवा देगा, दैट विल बी द विनर। सो अगर इस गेम में बी टीम बिकम्स द विनर, तो बी किसको पुल कर रही है? बी इज पुलिंग ए टुवर्ड्स दिस साइड। So direction of force and direction of displacement are the same. So we can say that work done by winning team is positive because direction of force and direction of displacement are the same. लेकिन टीम A फोर्स अप्लाई करेगा इधर, लेकिन उसको धक्का लगेगा इधर। सो नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? Negative work done, under what condition work done is said to be negative if the direction of force and the direction of displacement दोनों opposite? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा, वर्क डन इज नेगेटिव। सो आपको अगर मैं पूछूं कि विनिंग टीम कैसा वर्क परफॉर्म किया, विनिंग टीम ने पॉजिटिव या नेगेटिव? अद्विका, परिश्मिता, दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। विनिंग टीम पॉजिटिव अक्षत, क्योंकि विनिंग टीम जिस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ होगा। लेकिन जो टीम लूजिंग टीम है वो अगर फोर्स इधर अप्लाई कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल, you are pulling a bucket using a rope और ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। तुम रोप से बकेट को ऊपर ले जाने के लिए यू आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स,
और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ठीक है। सो आपको अगर पूछा जाए कि आप एक बकेट को रोप का हेल्प से ऊपर ले जा रहे हो, so work done by muscular force will be positive or negative if I ask you? Work done by muscular force will be positive or negative? Okay, गाथा ने नेगेटिव आंसर दिया है, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर मस्कुलर फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करेगा और बकेट ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं पूछूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इफ आई आस्क वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो आंसर नेगेटिव। वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स क्या होगा, आंसर पॉजिटिव। वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, और जीरो वर्क डन का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बताया है, जीरो वर्क डन, लेकिन यहाँ और भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था दैट अ मैन इज पुशिंग अ वॉल, वॉल इज नॉट डिस्प्लेस्ड, वर्क डन इज जीरो। अब इमेजिन करो एक और सिचुएशन, अ सैटेलाइट is revolving around a planet. A satellite is revolving around a planet. तो किसी भी मोमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस एट एनी मोमेंट। सो द एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इफ आई आस्क यू वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा इन दिस केस, गाथा, अक्षत, मेघा, they are giving Priyal, they are giving correct answer, Advika, Abhishek, okay, work done will be zero. So अगर आपको पूछा जाए when a satellite is revolving around the earth, what is the work done by the gravitational force, the work done by gravitational force is zero। इसको आप example use कर सकते हो, okay, इसको आप example use कर सकते हो for zero work done, understood? You can use this example for zero work done. सो मैंने आपको समझा दिया अबाउट वर्क का डिफरेंट फॉर्मूला, W इक्वल्स टू F इंटू एस, देन W इक्वल्स टू mgh, देन W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। अगर आपका स्कूल में ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ तो ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, एंड W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो। ओके, सो शुड आई मूव टू अनदर टॉपिक, पावर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। और ये जो शॉर्ट डिस्कशन मैं कर रहा हूँ इसके बाद अगर आप मटेरियल को ठीक से रीडिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, एनर्जी पोर्शन, आज वर्क और पावर। ओके, ये चार फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, वर्क का अभी और आने वाला, पावर आने वाला है, उसमें आपके पास भी पावर आएगा मंगलम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पावर। Power P. Power is denoted by symbol P. Yes, Abhishek, today there is Menti quiz. Power होता है rate of doing work, तो हम लोग लिखेंगे work by time. Rate of doing work is power. So power is work by time. Okay. So we can write P equals to W by 2. अब W by T, sorry. तो वर्क का तो बहुत फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, वर्क का आप फॉर्मूला जानते हो mgh, सो वी कैन राइट mgh by t। वर्क का आप फॉर्मूला जानते हो F इंटू एस, तो वी कैन राइट F इंटू एस बाई टी। कैन वी राइट F इंटू वी? कोई रीजन बता सकता है F इंटू वी क्यों? चैट बॉक्स में बताओ आप, वाई F इंटू वी? P equals to W by T, mgh by T, F into S by T. So Advika, then Shreya,
Nabaruna, they are giving the answer, and Priyal Bajoria. So आपको S by T डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता पता है, तो उसको यहाँ यूज किया हम लोगों ने. So these are the different formula for power. अब मैं आपको अगर पूछूं what is the SI unit of power? What is the SI unit of power if I ask you? Okay, Navaruna has given the answer. Advika, Bhumi, Gatha, and all are giving correct answer. SI unit. SI unit of power is watt. Watt denoted by capital W. Watt और dash by dash क्या होगा? Fill in the blank. Watt equals to dash by dash. Watt equals to dash by dash. क्या by क्या? Okay, Priyal Bajoria has given correct answer. Watt equals to joule per second. Watt joule per second क्यों होता? Because work by time. Work by time तो ये joule per second. अब इसको जूल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. ओके, तो वॉट को अगर आप केजी मीटर और सेकेंड में एक्सप्रेस करोगे तो क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, सॉरी सेकेंड क्यूब. और ये वॉट को, डब्ल्यू को नहीं, इट इज वॉट, WATT, वॉट को. अगर आप जूल को इसमें एक्सप्रेस करोगे तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वॉट WATT, वॉट क्या? वॉट इज इक्वल्स टू केजी, वॉट इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. ओके, और वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड. वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड और वॉट इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. और आपको याद रखना जूल इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. न्यूमेरिकल करते वक्त कभी कभी जब आप यूनिट्स को कंबाइन करते हो तो आपको फाइनल यूनिट लिखने के लिए आपको या तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स का डायरेक्ट नॉलेज होना पड़ेगा या ये रिलेशन आपको जानना होगा. So if I ask you what is electric power, sorry, what is power? Power is the rate of doing work. और फॉर्मूला क्या क्या मिला पावर का? पावर इज वर्क बाय टाइम, mgh by t, f into s by t, f into v. All these are formula for power. Okay, so just take the screenshot. I am moving to another screen. Have you understood? आप पावर जब कैलकुलेट करोगे तो वाट लिखने से हो जाएगा. और मंगलम पूछ रहा है एफ इंटू वी कैसे आया. आप ये फॉर्मूला में एफ इंटू एस बाई टी है, इधर दिखाई दे रहा है, और एस बाई टी तो वी होता है, एस बाई टी वी होता है. मंगलम, हैव यू अंडरस्टूड? एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन, मूविंग टू अनदर वन. सो अभी हम लोगों ने पावर के बारे में बात किया, और पावर का एसआई यूनिट वॉट, लेकिन पावर का एसआई यूनिट को छोड़ के बिगर यूनिट्स भी बहुत यूज होता है. बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, किलोवाट, 1 kilowatt is 1000 watt. Megawatt, MW, 1 megawatt, 10 to the power 6 watt, या फिर 10 to the power 3 kilowatt, यानी 1000 kilowatt. We can write what? 1000 kilowatt. ओके, लेकिन एक और यूनिट है जो मशीन्स, इंजन, ये सब के लिए यूज होता है. कौन सा यूनिट है वो पावर का? अद्विका हैज गिवन द आंसर. पलक, श्रेया ने आंसर दिया. प्रियल रॉन्ग है. भूमि, गाथा, नवरुणा, यू ऑल आर करेक्ट. सो वो है हॉर्स पावर, HP. 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट, कौन बताएगा? 1 हॉर्स पावर हाउ मेनी वॉट्स? अभिषेक रे, अद्विका, दे हैव गिवन द आंसर. समीर, प्रियल बाजोरिया, 1 हॉर्स पावर 746 watt. 1 horsepower is 746 watt. So what are the bigger units? Kilowatt, megawatt and horsepower. These are the units of power. अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 watt of power, पावर को 1 watt कब बोलोगे? तो आपको फॉर्मूला पता है, P equals to W by T, वर्क बाय टाइम.
सो 1 watt कब होगा पावर? जब वर्क डन 1 जूल, टाइम टेकन 1 सेकेंड। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली 1 किलोवाट अगर आपको कोई डिफाइन करने दे देता है, तो इट विल बी 1000 जूल बाई 1 सेकेंड। Power is said to be 1 kilowatt if 1000 joule of work is done in 1 second. Power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. Have you understood? Have you understood this? तो इसी तरह वर्क में आपको कोई बोल दे वर्क वाला पोर्शन में कि डिफाइंड 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, तो वर्क वाला फॉर्मूला से करेंगे W इक्वल्स टू F इंटू एस। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वर्क डन 1 जूल कब होगा? जब फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। ऐसे डिफाइन करेंगे। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर इन इट्स डायरेक्शन। Power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. Power is said to be 1 kilowatt if 1000 joule of work is done in 1 second. Have you understood this? सबको समझ में आ गया? About power. Okay. So एक बार इन शॉर्ट में फॉर्मूला रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का। जस्ट लुक एट द फॉर्मूला, क्योंकि यही सब फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल करते वक्त जरूरत पड़ेगा। You will need all these formula while solving numerical। तो वर्क का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। W इक्वल्स टू F इंटू एस था, W इक्वल्स टू mgh था, W इक्वल्स टू fs cos थीटा। अगर स्कूल में यूज हो रहा तो यूज करना है इसको। देन W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर था, ये सब। उसके बाद पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू W बाई टी, वर्क है यहाँ पे W, देन mgh बाई टी, देन F इंटू एस बाई टी, देन F इंटू V। और भी फॉर्मूला हो सकता है। आप मुझे पूछ सकते हो सर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया। आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले वर्क कैलकुलेट कर लेना। वैसे तो पावर W बाई टी से ही हो जाएगा। आप किसी भी फॉर्मूला से वर्क कैलकुलेट कर लो, उसको टाइम से डिवाइड कर देना। इफ यू डिवाइड वर्क बाय टाइम यू विल गेट पावर। इफ यू डिवाइड वर्क बाय टाइम यू विल गेट पावर। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। सो अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं मेंटी क्विज में, और फॉर्मूला मैंने समझा दिया आपको वर्क और पावर के बारे में। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय दैट टाइम। मेगा पॉल फर्स्ट वाला फिर से समझाइए ना। फर्स्ट वाला मतलब कौन सा? कौन सा, वर्क का या पावर का? वर्क और पावर। इफ आई आस्क यू वर्क और पावर, कौन सा वाला? पावर का बिगर यूनिट। ओके, बिगर यूनिट ऑफ पावर, अगर वो स्क्रीन आपको देखना है, बिगर यूनिट ऑफ पावर, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। बिगर यूनिट्स में क्या क्या है? किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 to the power 6 watt, 1 horsepower 746 watt, 1 horsepower 746 watt। फिर यहाँ मैंने 3 डेफिनेशन यूज किया है, जूल, वाट और किलोवाट। जूल, वाट और किलोवाट। वर्क डन 1 जूल कब होगा? फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। पावर 1 वाट कब होगा? वर्क डन 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड। पावर 1 किलोवाट कब होगा? तब वर्क डन 1000 जूल, टाइम इज 1 सेकेंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सबको समझ में आ गया? So be ready for the quiz. You can mark your attendance by that time.